So, wifey, how was the movie? सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिव रिव्यूज है. ऑन यूट्यूब इफ यू सी ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज है. इवन IMDb इज 3.2 स्टार्स आउट ऑफ 10. लोगों का गुस्सा कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर गुड एंड बैड पॉइंट्स बोथ. हम लेट हो गए मूवी के लिए. आहना की वजह से लेट हो गए. Hey, no, because of you. मूवी टाइम इज 10:20. माई घड़ी में टाइम हुआ 9:30. Will we reach on time this time? 3 मिनट लेट. 40 मिनट बचे हमारे पास एंड वी हैव अराउंड 10 किलोमीटर्स टू ड्राइव. यही होता है जब हम लेट होते हैं तो ट्रैफिक जैम भी बहुत लग जाता है और दोनों तरफ से गाड़ियों ने जैम करके रखा है. सामने से आएगी कैसे गाड़ी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 9:50 नाउ. 9:48 हो गया है. We've barely traveled 2 to 3 kilometers on the Ghodbunder Road. Just imagine the kind of traffic jam at night over here. And still around 6 to 7 kilometers to go in maybe another 25 minutes. और थोड़ा सा कुछ खाना भी है बीच में. I hope कि आगे वाला पैच पूरा क्लियर हो. And right now it's 10 o'clock. We have still not reached. Still I think 1 or 2 kilometers more. We are nearby but not reached. और खाने के लिए हमें वक्त नहीं मिलने वाला है. So the plan right now is I've already booked popcorn, so we'll have those when the movie starts. और जब मूवी खत्म होती है यहाँ पे एक लेट नाइट जॉइंट खुला होता है इन थाने near to Manpada. Starts at 10 PM or something and it is on till 4 at night, 4 AM. So it's 10:15 right now. I'm just entering the parking lot of Viviana Mall. It's 10:19 already. 10:20 almost. And we're just in time. Chalo, thankfully. Ahana, which movie is this? Hanuman. Huh? Hanuman. And when we go with Vivi and Naira, then we are gonna watch Barbie movie. Alright. Oh, it's a Barbie movie coming up. July 21. Correct. We'll come here for the Barbie movie, okay? You have to open it first. Good. 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 See like this. Yeah. So, wifey, how was the movie? Good. Could have been better. So there are good and bad points both. So, frankly speaking, it's a family entertainer. Kids are going to love it. The main character, Ram, by Prabhas, I think, right? Yeah. That casting could have been a little different because the Ram which I know, I'm talking about Ram, not Ravan. So the Ram which we've been seeing in Ramayana was a little not that masculine. अब सबको अब अरुण गोविली चाहिए तो फिर मतलब वो देयर इज नो वे पीपल कैन बी सैटिस्फाइड. हाँ, प्रभास मुझे भी थोड़ा लगा मतलब इट्स लाइक अ स्टैच्यू. Ranbir Kapoor. हाँ, रणबीर कपूर could have been a better Ram. Yes. Yes. With Prabhas, what was happening was he was just like a statue. Like, I mean, expressions ऐसे कुछ खास थे नहीं उसमें. No, He was just like blank. too old for Ram. A lot You of- see these said mythological that. stories. We have been seeing like Ramayana जो हम देखते आ रहे serial. Yeah, the picture which we see of Ram was not like that. Okay. So he was not looking like Ram. उसमें मुझे भी लगाई थी राम को, बट एक्चुअली इन द माइथोलॉजिकल स्टोरी जो भी वो पिक्चर्स दिखाते हैं, स्क्रिप्चर्स एंड ऑल, maybe, yeah. मस्टैश मुझे वाज नहीं नॉट देयर फॉर राम. एंड देन सम ऑफ द नेगेटिव पॉइंट आई वुड से डेविएशन था फ्रॉम द एक्चुअल स्क्रिप्चर्स, बट उसमें वो डिक्लेयर भी किया था उन्होंने एट द बिगनिंग दैट देयर माइट बी सम डेविएशंस इन द वर्जन दैट दे आर शोइंग. ओके. And it is something like, I mean, like, you know, Ravan has spiky hair and these kind of ऐसे वो lines वगैरह, fancy haircut दिखाया था. A revisited version of Ramayana. Whatever, वो हर एक का opinion है. And I mean, the basic plot remains the same. कि चलो सीता का अपहरण हो गया and then they try to go and rescue her वानर सेना के साथ में. So that entire plot remains the same. Picturization जैसे हुआ है. I would say it's a mix of Avengers and Star Wars एंड गेम ऑफ थ्रोन्स, और वो थोड़ा सा मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस का भी बीच बीच में आता है वो चीज़. एंड बीच में अपने बॉलीवुड का एक सॉन्ग भी है. अ बिग नेगेटिव पॉइंट अबाउट द मूवी दैट आई फाउंड वाज its dialogues. These were like very weak dialogues.
डायलॉग्स मतलब इतने अच्छे हो सकते थे ना विद द गिवन प्लॉट कि पब्लिक ने सीटी बजानी चाहिए थी, तालियां बजानी चाहिए थी. दैट काइंड ऑफ डायलॉग ना रोंगटे खड़े करने वाला. थर्ड नेगेटिव पॉइंट अबाउट द मूवी वाज कुछ सिचुएशंस ऐसे थे ना जो फोर्स फिट किए थे. मतलब ऐसे वो ऑब्वियस लग नहीं रहा था कि ऐसे होने वाला है. स्पेशली द फर्स्ट फाइटिंग सीक्वेंस. सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स हियर, पर अगर फर्स्ट फाइटिंग सीक्वेंस आप देखोगे यू विल रियलाइज दिस कि वो जो नेचुरल वो लग नहीं रहा है वो सीक्वेंस इन द फाइट. नाउ एज फार एज द टिकट प्राइस ऑफ द मूवी इज कंसर्न, ये थोड़ा प्रीमियम चार्ज्ड है कंपेयर टू अदर मूवीज. 350 रुपीज पर हेड, सो दैट बिकम्स समवेयर अराउंड 1000 और समथिंग फॉर द थ्री ऑफ अस. देन सम पॉपकॉर्न्स एंड लाइक एन ऑप्शनल थिंग, बट टोटल 2000 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली. Now I'll give you a like-to-like comparison over here. The Flash, which is also an action movie with a lot of VFX, Hollywood की movie है. It is released on the same day. In the same multiplex, the ticket prices are 190 rupees, 160 rupees, 200 rupees. और ये तो मतलब it is a premium price that they have kept for this movie. लोगों का गुस्सा कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. जो हनुमान जी के डायलॉग्स हैं, they are pathetic actually. So वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था. मैं तुम्हारे बाप की लंका लगा दूंगा एंड स्टफ लाइक दैट, ऐसे कुछ ऐसे डायलॉग्स है उसमें विच आर वेरी डिस्टेस्टफुल. तो हनुमान जी के लिए अगर ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं तो ये सब चीज़ें जो है ना उनमें लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस मूवी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. एक तो फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए, सम ग्लेयरिंग फ्लॉज इन द मूवी. जब सीता का हरण हो जाता है, रावण उसको लेके जाता है, तो राम के सामने सामने वो लेके जाता है एंड ही इज़ लाइक कम्प्लीटली हेल्पलेस. He doesn't even retaliate or do anything of that sort. मुझे वो अजीब लगा. रावण की जो लंका जो दिखाई वो एक्चुअली सोने की लंका होती है एज पर द माइथोलॉजी, बट यहाँ पे जो दिखाया है वो काले रंग का ऐसा पूरा खंडर जैसा ऐसा कुछ दिखाया है. आयरन मैन का जो उसका जो लैंडिंग पैड होता है एवेंजर्स में, इट वॉज लुकिंग समथिंग लाइक दैट. चंगादर उड़ते हुए दिखते हैं. जब वानर सेना राम सेतु बनाती है तो उसके ऊपर श्री राम करके लिखते हैं हर एक पत्थर के ऊपर, एंड देन दैट स्टोन फ्लोट्स ऑन द ओशन. पर इसमें वो श्री राम लिखा हुआ पत्थरों के ऊपर वो नहीं दिख रहा था कहीं. पूरी मूवी में अगर किसी की एक्टिंग देखनी है तो वो होगी सैफ अली खान की. ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. कोबरा उनको मसाज करते हैं वो सब दिखाया था उसमें, बट देन इट इज़ लाइक कंप्लीट नॉनसेंस. हाउएवर हिज एक्टिंग इज अमेजिंग एंड आई थिंक ही इज़ द ओनली पर्सन इन द फिल्म जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है. एंड द सेकेंड वन इज मिस्टर देवदत्त नागे, जिन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया था. बजट जो था मूवी का इट वाज अराउंड 500 to 600 crores. वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा बिकॉज उसके हिसाब से आउटपुट दिख नहीं रहा है एज पर द बजट. उतने VFX भी उतने लेवल के दिख नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द बजट फॉर दिस मूवी. इसमें अगर इतने पैसे खर्च हुए हैं तो एक्शन कोरियोग्राफी जो होती है even that should have been a lot more better. The fight sequences, they were not looking like free flowing और genuine in terms of what is happening on the screen. वो लग रहा था कि ये ऐसे ही सिर्फ स्टाइल मारने के लिए you know हवा में उड़ रहे हैं and things like that. As far as background music is concerned, जो टाइटल ट्रैक जो है जय श्री राम राजा राम, that was done well. It was used at multiple places. उनको कुछ स्पेसिफिक जगहों पे यूज़ अगर करते तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता. पर ये तो मतलब काफ़ी बार लाइक एवरी 5 minutes लाइक यू नो इट्स बिन यूज्ड फॉर सम नॉर्मल पेटी सीन ऑल्सो. तो उसके वजह से उसका जो इम्पैक्ट जो होना चाहिए टू बी यूज्ड एट अ वेरी इम्पैक्टफुल सीन, एनी इम्पॉर्टेंट सीन, तो उसका ज़्यादा होता इम्पैक्ट. बट इट इज़ बिन यूज लाइक वेरी कैजुअली एंड लूजली. एंड माई रेटिंग फॉर दिस मूवी वुड बी 5 on 10. दिस इज़ एन अनबायस्ड रिव्यू. प्लसेस एंड माइनसेस दोनों मैंने बताए हैं. सोशल मीडिया पे सिर्फ नेगेटिव चल रहे हैं. एंड डू शेयर दिस वीडियो जिनको इस मूवी के लिए जाना है. 2:30 बज गए, आपको 2:30 ओके. और खाने के लिए सिर्फ यही एक जगह ओपन है, कैनन पाव भाजी नियर टू थाने स्टेशन. सो वी आर ट्राइंग देयर छोले भटूरे एंड ट्रिपल शेजवान नूडल्स. So this is all as far as the movie review is concerned, and this is where our journey comes to an end. हमारा डिनर वगैरह सब हो गया. Now it is like 2:30 or maybe in fact 3:30 हो गए. We were still outside and now we are just heading back. And do subscribe to our channel Price Point Stories to stay up to date with road trips, food trips and family time and everything in between.